Hello students, welcome in physics class. Today I am going to discuss about the relation between focal length and radius of curvature. So what is your topic? That what is the relation between radius of curvature and focal length. So this is your concave mirror. This is your pole P, and this is the principal axis. Here this is your focus point, and this is the center of curvature. So first draw the normal. So we draw the normal from center of curvature. This is your normal. Now the incident ray, the ray coming parallel to the principal axis. This is the ray coming parallel to the principal axis. This is your principal axis. This is your incident ray. After reflection, this ray passed through the focus. Now what is the incident angle? The angle made by incident ray with normal, that is your angle of incident. This is your angle of incident I. And what is the angle of reflection in this case? So this is the angle of reflection, that is R. Now what is the angle of C? What is the value of angle of C? So this is your इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस. दोनों आपस में क्या है? पैरेलल. एंड इन पैरेलल लाइंस दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज एंगल 1 and 2 आर अल्टरनेट एंगल. तो देयरफॉर एंगल 1 and एंगल 2 बोथ आर इक्वल. तो दिस एंगल इज योर आई. देयरफॉर दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू आई. तो योर suppose this point is your B, so your angle V is equal to angle C because both are alternate angle. Now from triangle VCF, BCF. In this triangle, two angles are equal. This angle C is equal to angle B. Angle C is equal to angle B. That is I is equal to R. And why I is equal to R? According to law of reflection. So what is the law of reflection? That is incident angle is equal to angle of reflection. So here I is your incident angle and R is your angle of reflection. So this I is equal to R. In this triangle, if two angles are equal in a given triangle, then the sides are also equal. Means given triangle में अगर आप इसकी बात करें BCF, तो BCF में दो एंगल इक्वल हैं, दिस I and R. तो CF और FV भी क्या होगा? इक्वल. क्लियर? तो इन ट्रायंगल BCF two angles are equal. Therefore side CF is equal to FB, and this is your equation number 1. CF, this is your CF and this is your FB. So this CF is equal to FB. Now apply the condition. What is the condition? If aperture of mirror is very small, if aperture of concave mirror
aperture of concave mirror is very small, in that case this point B is equal to approach to P. तो अगर अपर्चर स्मॉल होगा, दिस इज द अपर्चर, दिस डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज द अपर्चर. अगर ये अपर्चर बहुत स्मॉल होगा तो ये बी पॉइंट किससे क्लोज आएगा, पी के. तो दिस बी पॉइंट इज वेरी क्लोज टू पी. इन दैट केस बी इज वेरी क्लोज टू point P. B is very close to point P, and your FP is equal to FB is equal to FP. मीन्स ये वाली साइड जो है FP वो किसके इक्वल हो जाएगी, FB जो है वो FP के इक्वल हो जाएगी. तो आपके पास जो है FB जो है वो किसके इक्वल हो जाएगी, FP के. और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या है, 2. तो अगर आप यहां पे इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करें, इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 क्या है मेरे पास, इक्वेशन 1 है CF इज इक्वल टू FV एंड FV इज इक्वल टू FP. तो यहां पे देखो FV की वैल्यू, FV की वैल्यू क्या है, FP. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, FP लिख सकते हैं, FV की वैल्यू. तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 and 2, this CF is equal to FP. एक्चुअल में FV के इक्वल है और FV किसके इक्वल है, FP के. तो ये किसके इक्वल होगा, FP के. अब ये फिगर में देखो CFFP, CFFP यहां पे मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको, पॉइंट्स को. तो ये पॉइंट मेरे पास क्या है, ये पॉइंट मेरे पास C, सेंटर में क्या है F, और ये पॉइंट मेरे पास क्या आ गया, P. तो ये पॉइंट जो है वो इक्वल है आपस में, CF और FP दोनों आपस में क्या है, इक्वल. मींस ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों आपस में क्या है, इक्वल. अब फिगर में देखो ये क्या है, फोकस से पोल तक का डिस्टेंस वो मेरे पास क्या होती है, फोकल लेंथ. तो दिस इज योर फोकल लेंथ. और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर. वो क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर. इट मींस ये जो साइड है आपकी यहां तक, सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस वो R है. फोकस से पोल तक का डिस्टेंस वो क्या होता है, वो होता है फोकल लेंथ. अब जो हमने रिलेशन यहां पे निकाला कि दोनों जो है वो सेम है, तो इट मींस ये भी क्या हुआ, ये भी आपके पास F हुआ. तो यहां से अगर मैं कंपेयर करूं तो R किसके इक्वल आ रहा है, R जो आ रहा है वो F प्लस F. तो दिस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू F प्लस F, दैट इज R इज इक्वल टू 2F एंड फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर. और R इज इक्वल टू 2 इंटू F. और यही हमारे पास एक्सप्रेशन था कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. तो और इसको कैसे कर सकते हैं, दिस F इज योर मिड पॉइंट, F इज योर मिड पॉइंट, देयरफॉर दिस R इज इक्वल टू 2F. F इज द मिड पॉइंट ऑफ C एंड P. तो हमारे पास यहां पे जो रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या आया मेरे पास, दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस. अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहां पे अगर हम सॉल्व करें, व्हाट इज द फोकल लेंथ, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ गिवन spherical mirror if radius of curvature is 20 सेंटीमीटर. अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है गिवन स्फेरिकल मिरर का 20 सेंटीमीटर है, तो व्हाट इज द फोकल लेंथ. तो इन दैट केस व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज 20/2 दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो व्हाट इज द फोकल लेंथ इन दिस केस, फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर.
Okay students, thank you.